ہیں تو مسیح خداوند نے فرمایا کہ سیون کی بیٹی سے کہو، اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر سوار ہے۔ یہ پیشن گوئی یسایہ نبی نے 700 تقریباً 32 سال پہلے کی تھی۔ خداوند کے کلام میں لکھا کہ خداوند نے، آئیے یسایہ 64 باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا، اور خداوند نے انتہائی زمین تک اعلان کر دیا تھا کہ دختر سیون سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے، دیکھ اس کا عدل اس کے ساتھ اور اس کا کام اس کے سامنے ہے۔ 732 سال پہلے یسایہ نبی نے پیشن گوئی کی تھی، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، دختر سیون سے کہو۔ دختر کا مخفف جو ہے وہ یہ ہے بیٹی۔ یروشلم کی بیٹیوں سے کہو، یروشلم کے لوگوں سے کہو، خدا کتنا پیار کرتا ہے اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے، خدا کتنی اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ان کی تسلی کے لیے جو کہہ رہے ہیں کہ ہوشنا ہوشنا، ایش خداوند ہمیں بچا لے، ہمیں بچا لے، تو خدا باپ نے 750 سال پہلے یسایہ نبی کے ذریعے پیغام بھیج دیا زمین کی انتہا تک۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند نے اعلان کر دیا، زمین کی انتہا تک جب اعلان ہوتا ہے تو دور دور تک اس کی نیوز پہنچ جاتی ہے۔ زمین کی انتہا تک، زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اور سمندر کے کنارے سے دوسرے کنارے تک، یعنی کہ زمین کے کونے کونے تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک خداوند نے اعلان کر دیا۔ اور یہ دیکھیں لوگ اس بات کو 1000 سال 750 سال پہلے کی بات ہے، 1000 سال پہلے کی بات ہے، ان کے ذہن میں خداوند کا کلام ان کے دل کی تختی پر ان کے دماغوں میں لکھا ہوا تھا، اس لیے وہ ہوشنا ہوشنا کے نعرے لگاتے ہیں، آئے خداوند ہمیں بچا لے، آئے خداوند ہمیں بچا لے۔ زکریا نبی اس کا 9واں باب 9ویں آیت میں، اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم تو خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے، وہ صادق ہے، نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے، گدھے پر بلکہ لادو کے بچے پر سوار ہے۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، پہلے ہم کھجور کی ڈالیوں کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اگر کھجور کے تعلق سے خداوند کے کلام میں سے آپ ریفرنس دیکھیں تو بہت ریفرنس ہے۔ جیسے یہ کھجور کے درخت کو کہا جاتا ہے کہ یہ لمبا ہوتا ہے، اس کی جڑیں کافی گہری جاتی ہیں اور اوپر سے جھکا ہوتا ہے، سدا نیویاں اکھڑوں پھل لگتا ہے، جڑا جھکتا نہیں ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ درخت کی خاصیت ہے کہ لمبا ہوتا ہے، عام درختوں سے لمبا ہوتا ہے، پھر اوپر سے جھکا ہوتا ہے اور ہمیشہ سدا بہار درخت ہے، سر سبز رہتا ہے۔ اس کے بارے میں بہت سارے ریفرنس ہیں۔ جب ہیکل بنی تھی اس میں بھی بزرگ سلیمان نے یہ ان پتوں کی تصویریں جو تھی کندہ کی تھی دیوار کے ساتھ، بہت اس کے ریفرنس ہیں۔ تو کھجور کی ڈالیاں لے کر جلوس، یوحنا کی انجیل کے اندر کھجور کی ڈالیاں ہیں، باقی تینوں اناجیلیں کے اندر ہرے درختوں کی ڈالیاں ہیں، انہوں نے کاٹ کر راستے میں بچھائیں اور ہوشنا کے نعرے لگا رہے تھے۔ بھیڑ آگے اور یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی، ہوشنا ہوشنا کے نعرے لگا رہے تھے۔ ابن داؤد کو ہوشنا، یروشلم خداوند کے شہر میں عالم بالا پر ہوشنا کے نعرے لگا رہے تھے۔ کھجوروں کی ڈالیاں شاید صلیبی جنگوں سے یہ رسم لی گئی۔ صلیبی جنگوں کے مجاہدین جب جنگ کے لیے جاتے تھے تو جب جنگ کو فتح کرتے تھے اور جنگ جیت لیتے تھے تو کھجوروں کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لے کر اس طرح ہوا میں اس کو لہراتے تھے، اور وہ اس بات کی نشاندہی کھجوروں کی ڈالیاں کرتی ہیں کہ یہ فتح کی نشانی ہے، فتح حاصل کی ہے۔ اور وہ ایک دوسری نشانی یہ تھی کہ وہ یروشلم سے ہو کر آ رہے ہیں۔ شاید یہ روایت، یہ رسم وہاں سے لی گئی۔ آج بھی بہت ساری کلیسیوں کے اندر دستور ہے، لوگ گرجا گھروں میں جلوس کی صورت میں کھجوروں کی ڈالیاں ہاتھوں میں لیے ہوئے ہوا میں لہراتے ہوئے ہوشنا کے نعرے لگاتے ہوئے
खुदा के घर में आते हैं। तो ये कोई इत्तफाकी अमर नहीं, बल्कि ये खजूरों की डालियाँ जो हैं ये एक फतह की निशानी है। और यीशु मसीह को जो शाहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल हो रहे थे, उसकी ताज़ीम के लिए लोग नारेबाजी लगाते रहे। आज भी लोग नारे लगाते हैं, जोर से ललकारते थे। आज हम देखते हैं कि जब उन्होंने गधा शागिर्द जो थे, गधे के बच्चे को लाए, लोगों ने उस पर अपने कपड़े डाल दिए और यीशु मसीह उस पर सवार हो गया और उस गधे की बड़ी ताज़ीम हुई, उस गधे की बड़ी इज्जत की गई, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं थी। जब मैं पाकिस्तान में था, मैंने लास्ट में ये बताया था कि मुझे पुलिस में जाने का बहुत शौक था। मैं कोई काम नहीं करता था ना। मेरी वालदा कहने लगी कि बेटा आपकी 3 बेटियां हैं, तो उनको ज़रूरत है आप काम किया करें। बताने का मकसद ये है कि मेरे घर के लोग कहते थे कि इसने कोई काम नहीं कर रहा, ये बच्चों ने इंजी रखेगा भूखे मारे, कोई काम नहीं कर रहा। तो जब उस गधे को खुदावंद यीशु मसीह के लिए लाया गया, तो उस गधे की लोग गधे पर कपड़े डाले, यीशु मसीह को गधे पर सवार किया और गधे के रास्ते में लोगों ने दरख्तों की टहनियां काट कर डाली, कपड़े अपने बिछा दिए। अभी बच्चों ने आपको ये दिखाया है कि यीशु मसीह की ताज़ीम के लिए उस गधे की रिस्पेक्ट की गई। वजह क्या थी, क्या सबब था? आइए एक हवाला देखेंगे। मैं भाई जॉनसन से दरख्वास्त करूंगा, वो अय्यूब नबी का सहीफा, उसका 11वां बाब 12वें आयत प्लीज। लेकिन बेहुदा आदमी समझ से खाली होता है, बल्कि इंसान गौर करके बच्चा की तरह पैदा होता है। आमीन। बेहुदा आदमी समझ से खाली होता है और गौर करके बच्चे की तरह पैदा होता है। गौर कर किसे कहते हैं? गौर कर का मतलब है, गौर का मतलब है कब्र, खार का मतलब है खरबूजा, लेकिन गौर का मतलब है गधा, जंगली गधा। जंगली गधे के बदले पर 2 किस्म के लेने होती हैं, वाइट एंड सफेद या ज़ेब्रा होता है, या और भी कई किस्म के कलर हैं। तो जंगली गधे को इंसान गौर करके बच्चे की तरह पैदा होता है। उस बेहुदा आदमी की क्या बात करें जो समझ से खाली होता है, बल्कि इंसान गौर करके बच्चे की मानंद पैदा होता है। इंसान गौर करके बच्चे की तरह पैदा होता है। जब उस इंसान की जिंदगी के अंदर आसमान और जमीन का मालिक आ जाता है, जिसके बारे में होशना के नारे लगाए जा रहे हैं, जब उसकी जिंदगी के अंदर वो आ जाता है, तो उसकी जिंदगी उस इंसान की इज्जत की जाती है, उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। हर वो दरख्त जिसको मालिक अपनी मर्जी से लगाता है, जिसे यहाँ उसे अच्छा लगता है, वहां उसे लगाता है। कलाम में लिखा कि बर्तन ऐसे भी होते हैं जो बहुत कीमती होते हैं, और कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो वॉशरूम में यूज किए जाते हैं। तो कीमती बर्तनों की रिस्पेक्ट होती है। तो जिसकी जिंदगी में खुदा आ जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसकी हर शख्स कदर करता है, हर शख्स उसकी रिस्पेक्ट करता है, हर इंसान उसे इज्जत की नजर से देखता है जिसकी जिंदगी में खुदा आ जाता है। बेशक नौजवान शख्स है, अगर वो पादरी साहब है तो सब उसे पादरी साहब कह के बुलाएंगे। बेशक नौजवान है, पादरी को बुजुर्ग का खिताब दिया जाता है, बेशक वो जवान है, क्योंकि उसकी जिंदगी में वो जिंदगी का मालिक, बादशाहों का बादशाह आ जाता है। लोग ताज़ीम कर रहे थे, लोग हालेलुया के नारे लगा रहे थे, होशना के नारे लगा रहे थे, आए खुदावंद बचा ले, आए खुदावंद बचा ले। और भीड़ में से किसी ने कहा कि ये कौन है, ये कौन है? इतनी ताज़ीम, इतनी इज्जत के तादाद आगे जा रही है, पीछे जा रही है, होशना के नारे लगा रहे हैं, कौन है? तो उस भीड़ में से जवाब दिया कि ये नासरत का नबी यीशु है, नासरत का नबी यीशु है। आज नासरत का नबी जिसकी जिंदगी में आ जाता है, उसकी इज्जत लोग इज्जत करते हैं, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं,
क्योंकि पहले उसकी जिंदगी कैसी है। आइए एक और रेफरेंस देखेंगे, अय्यूब नबी का सीफा 15वां बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, फिर भला उसका क्या जिक्र करना जो घिनौना और खराब है, यानी वो आदमी जो बदी को पानी की तरह पी जाता है। इंसान और गधे की आदतें मिलती जुलती हैं। भाई जॉनसन ने रेफरेंस पढ़ा कि बहुधा आदमी समझ से खाली होता है, बल्कि इंसान गोरखर के बच्चे की मानंद पैदा होता है, गोरखर के बच्चे की तरह पैदा होता है। तो इन गधे और इंसान की आदतें मिलती हैं। जब गधे को काम से छोड़ते हैं तो कहां जाता है? गंदगी की तरफ जाता है और दलदल में लेटता है। इसी तरह अय्यूब 15वां बाब की 16वीं आयत में, फिर भला उस आदमी का क्या जिक्र करना, फिर भला उसका क्या जिक्र करना जो घिनौना और खराब है, यानी वो आदमी जो बदी को पानी की तरह पी जाता है। गधा गंदगी खाता है, इंसान बदी को पानी की तरह पी जाता है। इंसान कोई परवाह नहीं करता, कोई फिक्र नहीं करता। गधे को काम से छोड़ा जाए तो फिर वो गंदगी की तरफ जाता है। तो जब इंसान काम से फारिग होता है तो वो क्या करता है? अच्छे कपड़े पहनता है, बाल बनाता है, रास्ते में खड़ा हो जाता है, मोड़ों पर खड़ा हो जाता है, आने जाने वालों के लिए निकम्मी आवाजें अपने मुंह से निकालता है। सवाल पैदा होता है कि खुदा में यीशु मसीह ने घोड़े की सवारी क्यों नहीं की? बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदावंद है, उसने क्यों गधे की सवारी की, घोड़े की सवारी क्यों नहीं की, या किसी बड़े रथ की सवारी क्यों नहीं की? अजीज भाइयों, पुराने वक्तों में, मैंने पहले सलीबी जंगों के बारे में बताया, पुराने वक्तों में जब बादशाह जंग के लिए जाते थे, लड़ाई के लिए जाते थे, तो तब वो घोड़े की सवारी करते थे। लेकिन जब बादशाह अमन और सलामती का पैगाम लेकर आते थे, तब वो गधे की सवारी करते थे। यशायाह 9वां बाब उसकी 6वीं आयत में लिखा है कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, जो अजीब मुशीर खुदा कादिर अतीयत का बाप और सलामती का शहजादा। वो तो सलामती का शहजादा था, तब भी लोग पुकार रहे थे, खुदावंद हमें बचा, आए खुदावंद हमें बचा ले, आए खुदावंद हमें बचा ले। तो वो तो सलामती का शहजादा था। उसकी जंग इस तरह की नहीं थी कि वो घोड़े पर सवारी करके आते, वो तो सलामती का शहजादा था। इसलिए सलामती का पैगाम लेकर वो। तीसरी बात यह है, गधे के बच्चे को क्यों लिया? कोई जवान गधे को क्यों नहीं बुलाया गया? ये जवान गधे को क्यों नहीं बुलाया गया? गधे के बच्चे को क्यों लिया गया? जवान लादू का लिखा है, लादू का बच्चा। लादू नहीं, लादू जो होता है वो तमाम वो दाव पेच जानता है। मैंने क्या करना है, कहाँ मैंने गिराना है, मैंने क्या करना, क्योंकि वो तमाम दाव पेच सीख जाता है। कोई लादू शख्स वो जो कहीं से खुदा उनका कलाम सीख चुका है, लादू शख्स किसी दूसरे से कुछ सीखता नहीं। वो कहता है ये मुझे क्या सिखाया, मैं पहले ही बहुत कुछ सीख चुका हूं। इसलिए मसीह खुदावंद ने बच्चे को लिया, लादू को नहीं लिया। यानी खुदावंद के कलाम में लिखा है, मिसाल की आयत है 22वें बाब 6वीं आयत में, लड़के की ऐसी राह पर तरबियत करके वो बूढ़ा होकर भी ना भूले। बच्चों की ऐसी राह पर तरबियत करें तो वो बूढ़े भी हो जाएं तो उस रास्ते को ना भूले। जब बच्चों की तरबियत का वक्त आता है, अगर बाप डांटता है तो मां आगे हो जाती, बस होना इनको कुछ ना कही, कौन कुछ ना कही। खुदा के कलाम में लिखा है कि बच्चे की ऐसी राह पर तरबियत कर, अगर छड़ी का इस्तेमाल करता है तो वो मर नहीं जाएगा। मसीह खुदा ने बच्चे को लिया, पूरे जवान गधे को नहीं लिया, उसने बच्चे को लिया। बच्चे को जैसा भी सिखाया जाता वो सीख सकता था। आप शतूत की एक छड़ी ले लें, उसको ऐसे आप घुमाएं और उसका आप एक रिंग बना सकते हैं। उस वक्त तक जब वो ताज़ा होती है, जब वो नरम होती है, लेकिन जब पक जाती है तो आप उसको ऐसे उसका एक रिंग बनाने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगी, टूट जाएगी। जब बच्चे अपने जितने बड़े हो जाते हैं तो फिर उनको प्यार ही से समझाया जाता है।
मोहब्बत से समझाया जाता है। छोटे बच्चों की हमें तरबियत करने की बेहद ज़रूरत है कि बच्चे की ऐसी राह पर तरबियत कर कि वो बूढ़ा होकर न भूले। बुजुर्ग मूसा की आप कहानी से वाकिफ हैं। जब बुजुर्ग मूसा पैदा हुए तो फिरौन का ये कानून था, उसने दाइयों को हुक्म किया कि इब्रानियों के जो बच्चे पैदा हो, अगर लड़के पैदा हो तो उनको जिंदा को मार दिया जाए, अगर लड़कियां पैदा हो तो उनको जिंदा छोड़ दिया जाए। इस वक्त में, इसी दौरान, इसी टाइम में खुदा का बंदा मूसा पैदा हुआ तो 3 महीने बुजुर्ग मूसा की वालिदा ने उसको लुका छुपा कर रखा। तो जब ज्यादा देर ना उसको छुपा सकी, उसने एक सरकंडे की टोकरी बनाई, उसको चकनी मट्टी से उसको लेप किया और उसके अंदर मूसा को डालकर दरियाए नील के किनारे पर छोड़ा। दरियाए नील था या शायद और नाम उसका, तो वहां उसको छोड़ा बच्चे को। अब शहजादी बादशाह की बेटी अपनी सहेलियों के साथ वहां जा रही है। जब उसने बुजुर्ग देखा कि ये टोकरी में क्या है मेरे लिए, उसने अपने लिए मंगवाया और मूसा बहुत खूबसूरत बच्चा था, उसने उसे अपना बेटा बना लिया और अपने महल में ले गई। उसकी परवरिश महल में मूसा की जिंदगी के बारे में मैं बताऊंगा। अब मूसा जो है एक झोंपड़ी में पैदा होने वाला शख्स, गुलाम कौम में पैदा होने वाला शख्स, बादशाह के महल में परवरिश पा रहा है। और मूसा की माँ उसकी आया बनी, उसे दूध पिलाती रही और बच्चे को तालीम देती रही कि तू